Hello everyone. Uh, Today we are going to start class 12 mathematics, matrices and determinant. Our video is totally about NCERT class 12. It's for CBSE and Assam Council. This is my first video. ये मेरा पहला वीडियो है. Hope everyone like it, and if everyone, anyone or got any kind of doubt, you can comment in our comment section. I'm just trying to help you out in the lockdown 3. So let's see how much I can help you. So if I got any mistake, just pardon me. So let's start with our first topic, that is matrices and determinant. These are the two different chapters. That is chapter number 3 and 4 in your NCERT book. So I'll start with matrix, or you can say matrices, which is the plural form. Start with the matrix है, ठीक है? अगर किसी को कुछ भी doubt है, you can ask me in your comment section. Okay. So let's start with matrix. Or matrices. So matrix is the singular form and matrices is the plural form. So definition is written in the book. So while watching the video, just take out your NCERT book and just have a note copy in your hand with a pen. Just try to note it out and just try to pause the video when you like to have some doubt. So what is a matrix? A matrix is by definition I can say it is a rectangular array of numbers. So when I can say numbers, it may be real, it may be complex, or it may be some other function also, like trigonometry function you have got in class 11. आपको मिला होगा trigonometry function, ठीक है? So I'll start with the definition. Just write down in the, it's written in the book. So I'll start with an example. So when I'm writing a matrix, I always use a block letter. To denote matrix. So block letter I can use any number, it's not number, it's letter from A to Z. So when I'm writing say matrix A equal to, you have to use the bracket like this, okay, and that is the compulsory bracket. You can't use the bracket like this, it's not allowed, okay, you can't use the bracket like this, it's not allowed. Okay, so in this I am writing a matrix, and inside this I can write any number. Okay, so simply I am writing a number. So instead of number I can write any other thing, like I am writing another matrix, say B. Say it may be like what, sin theta, cos theta, minus sin theta, or you can say minus cos theta. So this is a number, this is our trigonometry function. So I can write anything inside a matrix. So when I am writing a matrix, you should be careful about you should write in a horizontal manner or a column manner. Okay. So while I am writing matrix A, you can see there are how many horizontal lines are there. You can say there are two horizontal lines, and this there are say you can say vertical lines. ठीक है? तो यहाँ पे दो horizontal line है और तीन vertical line, जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है? कुछ numbers. ठीक है? So when I am writing a matrix, this horizontal line is known as rows. इसको हम क्या बोलेंगे? Rows. And this vertical line is known as column. Okay. So this is my first horizontal line. So I can say this is my row number 1. I'm writing R only. R means what? Row. Okay. This one is second row. So I'll write it R2.
So remember when you are writing R1 and R2, you can write R1 here. R1 हमेशा ऊपर वाला होगा, ठीक है, उसके बाद R2 होगा. The next one is your column number 1. So where is the column number 1? Column number 1 is always in the extreme left from my side. So I can say this is column number 1, this is column number 2, and this is column number 3. Okay. Likewise, when I say matrix B, so this is my vertical. Sorry, this is my horizontal line. So I can say this is my row number 1 and this is my row number 2. ये मेरा row number 1 है और ये मेरा row number 2 है, ठीक है. So उसी तरह ये मेरा vertical line है, इसको हम बोलेंगे column number 1 and this is my column number 2. So when I'm writing matrix, so I can write anything. Say another example, say C. It may be any number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So again, if I am classifying rows and columns, so यहाँ पे हम देखेंगे कितना rows है. So row 1 है, then row 2 है. Column कितना है? Column 1, column 2, column 3, and column number 4. So it depends upon you how many rows and columns you can write. Okay. So hopefully you can understand what is matrix. Okay. So अब आएगा next is your order of a matrix. So hopefully आपको पता चला होगा what is a matrix. Matrix कुछ नहीं है, कुछ rectangular array है. Rectangular array, okay, जिसमें क्या होता है, rows और columns होता है, ठीक है. अच्छा, next आएगा what is the order of a matrix. Order of a matrix हम किसको बोलते हैं? Let's take an example. Say example I'm writing a matrix, say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. अच्छा, तो you can define how many rows are there. So ये मेरा हो गया row number 1 और ये हो गया मेरा row number 2. And how many columns? This one is my C1, this one is my C2, and this one is my C3. Now, what is the order of a matrix? When I say order of a matrix, the order of a matrix totally depend upon how many rows and columns are there in a matrix. ठीक है? तो when I am writing order, so be careful what is of which matrix I am writing a order. Here it is matrix name is what? A. So I am writing the order of a matrix A. Okay? So you have to calculate how many rows are there. So you can say this is my row number 1 and this is my row number 2. So I can write row कितना है? 1, 2, that is 2, and column कितना है? 1, 2 and 3. So I'll write this. Remember this symbol we call it what? By. Okay. So when I'm writing a matrix, order of a matrix, I am writing 2 by 3 matrix. It is the sign of multiplication in the case of matrix. Okay. So here it is what? I am not how to read the matrix is what? Order is 2 by 3. Okay. 2 means what? 2 rows and 3 means what? 3 columns. Okay. So just for the timing, just pause the video and just note it down. Okay. So next is your order of a matrix is already defined. The order is defined as what? Row by column. So be careful when you are writing a matrix. So matrix is denoted by any letter I can use, or inside I have to write some numbers, or you can say some function. It may be a complex number also. कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now order हम कैसे लिखते हैं? Order को हमको लिखना है नीचे, ठीक है? Here. So I have to see कितना रो है?
रो 1 और रो 2. So this thing you need not have to write. ये लिखने की जरूरत नहीं है हमको बस जानना है. That's why I'm writing here. Next time, so I'm not writing this row 1 and row 2. It is understood. The first one is row 1 and the second one is row number 2. And column में क्या है? This is extreme left is column number 1. So I'm writing here right now. We have C1, then it is C2, C3 and here it is C4. So order क्या होगा इसका? So पहले order में जब सबसे पहले आएगा row. कितना row है मेरे पास? 1, 2. So I'm writing 2. And how many columns are there? 1, 2, 3, 4. So I'll write 2 by 4. So इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 by 4. So ये इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, 2 into 4 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? 2 by 4. ठीक है? Okay. After that, so I'll write the general form. जनरल फॉर्म सबको याद है ना? जनरल फॉर्म सब किसी की मैथ्स में हम क्या यूज करते हैं? हमेशा जनरल फॉर्म यूज करते हैं हर एक एक्सप्रेशन का, या कुछ जैसे कि हमने क्लास 10 में यूज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम क्या लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो ये अंडरस्टूड है. ये क्या है मेरा? जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है? उसी तरह जनरल फॉर्म किसका आएगा? मैट्रिक्स का. ठीक है? तो मैट्रिक्स में हम जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? से यहाँ पे मैट्रिक्स A है तो इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स A Aij m/n. नाउ रिमेंबर, कंफ्यूजन की वजह से क्या लिखा है अपने Aij mn. I'll explain it one by one. ठीक है? Suppose I am writing B, so I am writing matrix B. Here it will be Bij और m/n. ठीक है? Now what is m/n? m/n क्या होता है? Order of a matrix. ठीक है? अगर ऑर्डर 2 by 4 हुआ, so I am writing 2 by 4 here. ठीक है? 1 by 3 है तो I am writing here 1 by 3. और Ij का मतलब क्या है? ये स्मॉल a और ये कैपिटल A, दोनों में डिफरेंस है. कैपिटल A और एक ऐसे ब्लॉक लेटर A इज द नेम ऑफ द मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स का नाम है. और Aij क्या है? ये मैट्रिक्स के अंदर क्या एलिमेंट है. अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है इसमें? रिमेंबर यहाँ पे एलिमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट? इनको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट. और यू कैन से इसको हम एंट्रीज भी बोलते हैं. राइट? एलिमेंट का मतलब क्या है? मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या है? मैट्रिक्स के अंदर क्या है? यहाँ पे ए मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब ये क्या है? एलिमेंट. ये 1 क्या है? एलिमेंट है. किसका एलिमेंट? मैट्रिक्स ए का. 2 क्या है? एलिमेंट है. किसका एलिमेंट? मैट्रिक्स ए का. 3 क्या है? एलिमेंट. किसका एलिमेंट है? मैट्रिक्स ए. इस लाइकवाइज ये सब 4 5 6 7 8 क्या है? ये द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. एलिमेंट और आई कैन से एंट्रीज. इसको हम एंट्रीज भी बोलते हैं. ठीक है? Okay, so suppose I am writing now matrix B. So I am writing here say -1 1 by 2 भी लिख सकते हैं, 3 2 4 -2. ठीक है? अब मैं पूछूंगा what is the order of a matrix. तो order of a matrix साथ साथ तुमको पता चलना है how many rows are there? 2 rows, right? 1 2. कितना कॉलम है? 1 2 3. सो सबसे पहले ऑर्डर में क्या आएगा? रो. 2 rows एंड कितना कॉलम है? 3. सो आई विल राइट 2 by 3. करेक्ट? सो हियर इट इज. ये एलिमेंट हो गया -1 हाफ 3 2 4 -2. दीस आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी. करेक्ट? ओके. आफ्टर दैट यू कैन से सर अब अंदर क्या है? ये Aij. Aij का मतलब क्या है? Ij. So let me explain. Suppose I am taking an example of matrix A. इसी का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? मैट्रिक्स A का एग्जांपल. इसमें एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एलिमेंट. ठीक है? ऑर्डर क्या था? 2 by 4. राइट? अब हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक पोजीशन होता है. दिस इज द पोजीशन. अपना अपना एक डिस्टिंक्ट पोजीशन होगा. अब कैसे होगा? सपोज आई एम टेलिंग यू. अब मैं पूछता हूं सपोज ये 1 का पोजीशन क्या है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस 1 इनसाइड दिस मैट्रिक्स? सो आई कैन से
अब मैंने यूज किया था ना स्मॉल आई जे, अब ये क्या बताएगा तुमको, दिस टेल यू अबाउट द पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो इफ आई एम राइटिंग दिस 1, अब इसका हम देखेंगे ये कौन सा रो में है, इन व्हिच रो इट इज लोकेटेड, रो नंबर क्या है ये 1 और कॉलम नंबर क्या है 1, सो इसका पोजीशन क्या हुआ, सो व्हेन आई एम राइटिंग अ पोजीशन A11 मतलब ये रो है और ये कॉलम, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट है 1, सो आई एम राइटिंग हियर 1, करेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, अब हम देखेंगे इसका पोजीशन क्या है। अब नाउ जब भी पोजीशन निकालना आपको देखना कौन सा रो में है, सो ये कौन सा रो में है, रो नंबर 1, और कौन सा कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है, सो राइटिंग हियर रो 1 कॉलम 2, कौन सा एलिमेंट है 2, करेक्ट। अब मैं पूछता हूं इसका पोजीशन क्या है इस 7 का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस 7 इन दिस मैट्रिक्स, सो 7 कौन सा रो में है, रो नंबर 2 में है, कौन सा कॉलम में है, कॉलम नंबर 3, सो आई एम राइटिंग हियर A1, सॉरी 1 नहीं होगा ये 2 होगा, दैट इज रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, किसका पोजीशन है इस 7 का, राइट, समझ में आ रहा है। सो देखो अब हर एक एलिमेंट का अपना एक डिस्टिंक्ट पोजीशन होगा, एक पोजीशन में दो एलिमेंट कभी नहीं होगा, करेक्ट, इन वन पोजीशन देयर विल बी ऑलवेज वन एलिमेंट, ठीक है। सो लाइकवाइज आई कैन राइट the position of the element, and when I am writing the general form of a matrix it used to be always like this, matrix A with the element of this, ij का मतलब क्या है position, and m by n का मतलब क्या है, it will tell you about the order of a matrix, correct, okay। after that अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से हमको क्या पता चलता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू व्हाट, m by n in general I can say, or you can say the number of element in the matrix, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, अब देखो मैट्रिक्स A में ऑर्डर क्या है 2/4, व्हेन आई एम राइटिंग 2/4 मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है 2/4, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2 into 4 दैट इज 8, सो मैट्रिक्स A में कितना एलिमेंट है 8 एलिमेंट्स, करेक्ट। लाइकवाइज अब मैट्रिक्स B देखते हैं, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 2 into 3 दैट इज 6 एलिमेंट, करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमको क्या पता चलता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स, करेक्ट, ओके। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So our next topic is construction of matrices. See, this chapter is very easy. डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे, है ना। If you got any doubt, comment section में comment करना, ठीक है, and I'll clarify your doubt. So let's see construction of matrices. अब construction भैया ये construction civil engineering construction नहीं है, ठीक है, हमको यहाँ पे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, घर नहीं बनाना। So when I say construction of matrices, यहाँ पे कुछ conditions दिया रहेगा। अब क्या कंडीशन है, अब जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं हम, बोलेंगे कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स, राइट, कंस्ट्रक्ट किया 2/3 मैट्रिक्स with the elements are linked by see this word, maybe I'm using some different kind of word. See मैथ्स में हमको वर्ड की तो जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ समझना है ना।
अब यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, दिस इज नॉट अ लिटरेचर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ग्रामर की इतना जरूरत नहीं है हमको, इसे हमको समझना है। दिस आर लिंक्ड बाय या कनेक्शन कुछ भी बोलो, दिस आर लिंक्ड बाय ऐसा रहेगा क्वेश्चन में, लिंक्ड बाय से ए एंड जे is given by what I plus j कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सी व्हेन आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कुछ कंडीशंस दिया रहेगा। तो यहाँ पे बोला कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स बनाना है हमको 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या है, 2 into 3 नहीं है भैया, याद रखना, इट्स नॉट 2 into 3, इट इज 2/3। 2/3 का मतलब 2 rows and 3 columns, ओके, एंड द एलिमेंट आर लिंक्ड बाय, यहाँ पे काम करते हैं i plus j, वेरी सिंपल, तो यहाँ पे मॉडुलस डाल दो, ठीक है, ओके। सो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इन व्हिच द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस लिंक्ड, इसका मतलब एलिमेंट के बीच में रिलेशन किसका है, मॉडुलस ऑफ i plus j। कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो याद रखना मुझे, व्हेन आई एम स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट द मैट्रिक्स बी A, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना है, 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 मतलब कितना रोज होगा, 2 रोज, कॉलम कितना होगा, 3 कॉलम्स। तो हमको समझना है, व्हेन आई से 2 रोज हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हेन आई से 3 कॉलम वर्टिकल लाइन। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सो अब हमको पता नहीं है व्हाट इज द एलिमेंट, सो आई हैव टू राइट व्हाट, हम इसको डिनोट करते हैं A और ये A। अब बोलेंगे सर ये क्या लिखा आपने, सो समझना हमको, हाउ मेनी रोज बोला यहाँ पे 2, राइट, 2 रोज, करेक्ट। देख लो भैया, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना है 3, 1 2 and 3, राइट। ऑर्डर क्या हो गया इसका 2/3, करेक्ट। अब बोलेंगे सर सारा एलिमेंट तो सेम है देखने में, चेंज करेंगे भैया, डोंट वरी। कैसे चेंज करेंगे, i j, पहला एलिमेंट कैसा होगा इसका पोजीशन, मैंने बताया ना पोजीशन ऑफ अ एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 1 1 रो कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट वन क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो आई एम राइटिंग व्हाट 1 2, नेक्स्ट इज व्हाट 1 3, दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट वन इज क्या, अब देखो भैया यहाँ पे row, I am getting changed with the row, the place of the row is changed. Up now moving on to what, row number 2, this element is what, second row में है और first column, right, then second row second column and second row third column, इसको हम साफ कर देंगे, है ना, right। क्लियर, और एक बार समझाता हूँ क्या है, मैंने क्या लिखा ये सब। सो व्हेन आई एम राइटिंग एन एलिमेंट, नाउ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, माय क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स 2/3, मतलब क्या है 2 रोज 3 कॉलम, सो 2 रोज 1 2 3 कॉलम, करेक्ट। नाउ फर्स्ट इसका पोजीशन क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करेक्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करेक्ट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, करेक्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। नाउ सी दिस इज नॉट माय फाइनल आंसर, दिस इज जस्ट अ रफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ये एक रफ कंस्ट्रक्शन है। अब मत बोलना सर आपने A क्यों लिखा, आई कैन यूज B आल्सो, हियर आल्सो आई कैन राइट B मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आई कैन राइट B आल्सो। फॉर राइट नाउ A इज द कन्वीनिएंट, आप यूज कर लेते, कॉमनली यूज होता है, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर व्हाट, मैट्रिक्स A का मैट्रिक्स कैसा ऑर्डर है 2/3, मतलब 2 रो 3 कॉलम, और ये मैंने क्या लिखा, दिस आर द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ द थिंग इज दैट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, ये जस्ट एक रफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब हम कहते हैं ना व्हेन आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, क्या करता है आर्किटेक्चर, एक रफ फिगर बनाता है, सो लाइक दैट दिस इज द रफ फिगर ऑफ अ व्हाट, मैट्रिक्स, करेक्ट। now I have to identify the element, element मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर होगा, कैसे होगा, let's see, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए this relation will work, ये रिलेशन
काम का आएगा। कैसे आएगा देखो, व्हेन आई राइटिंग A11, इसका मतलब ये जो ये बताएगा I और ये बताएगा J, मतलब रो और कॉलम, करेक्ट। सो अब रिलेशन में क्या दिया हुआ है, I प्लस J, मॉडुलस I प्लस J, I का वैल्यू कितना है 1, सो 1, J का वैल्यू कितना है 1, बीच में क्या है प्लस, तो 1 प्लस 1 तो कितना आएगा मॉडुलस 2, और मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, सो राइट 2, करेक्ट। लाइकवाइज नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज व्हाट A12, 12 का मतलब क्या है, this is the value of I and that is the value of what, J. So I am writing it 1 plus 2, so it will be modulus of 3. When I am writing modulus, it will be always what, positive, so it will be 3. समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सारा एलिमेंट निकालना, मैंने सिर्फ 2 निकाला, अब निकालो बाकी सब कैसा होगा, A13 I का वैल्यू कितना है 1, J का वैल्यू कितना है 3, तो 1 plus 3 it will be modulus of 4, that will be 4, ठीक है। सो ये 3 तो निकल चुका है भैया, अब नेक्स्ट निकालो A21, I का वैल्यू कितना है 2, J का वैल्यू कितना है 1, so it will be 2 plus 1, that will be modulus of 3, that is 3, correct। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट व्हाट A22, क्या निकालना है हमको, नेक्स्ट A22, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या है 2, J का वैल्यू क्या है 2, सो राइट 2 plus 2 that is modulus of 4, that is 4 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट 2 3 मतलब 2 plus 3 that is modulus of 5 and that will be your 5। अब ये सब क्या कर रहे हो, like this I am just finding the element, क्या है मेरा एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 and 6, and just put the values of these elements in this rough figure, you will get the final answer। therefore क्या हो जाएगा, therefore matrix A will be what, पहला क्या था मेरा A11, and what is the value of A11, it is 2, so write here 2। next element क्या है A12, यहाँ पे क्या है A12 का वैल्यू क्या है 3, so write here 3। next क्या है A13, what is the value of A13, that is 4, right, ठीक है। next क्या आएगा A21, that is what 3। next क्या है A22, that is 4। next क्या है A23, that is 5। और you can see this is a matrix, कैसा मैट्रिक्स है, जस्ट देख लो भैया, रो कितना है 1 2, तो 2 रोज, कॉलम कितना है 1 2 3, that is 2 by 3 and that is my final answer, ठीक है। अब देखो भैया ध्यान से, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 3 मैट्रिक्स, 2 rows 3 columns, right, and with the elements are linked by this link I am using, किताब में कुछ और होगा वर्ड, इसका कोई टेंशन नहीं हमको, ठीक है। सो एलिमेंट कैसे निकालना है हमको, बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ये रिलेशन फॉर एवरी क्वेश्चन विल चेंज, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वी आर ड्राइंग अ रफ फिगर कैसे पता चला हमको, बाय गिविंग व्हाट, गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2 by 3 मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज और 3 कॉलम, और एलिमेंट्स हमने कैसे निकाला, बाय यूजिंग द रिलेशन that is given here, okay, and 6 element, here it is also 6 element, right। so just kindly note it down and pause the video, okay। so hopefully सबको समझ में आया होगा ना, अगर किसी को नहीं आया please comment in our comment section, ठीक है। this is my first video, इसमें भी गलती हो ही जाता है इंसान, no one is perfect, right। so hopefully ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 का, तो उसमें आपको मिलेगा, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑफ दिस चैप्टर, दिस मैट्रिक्स में क्या है आपका, आपको मिलेगा आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, पोजीशन दिया रहेगा, आइडेंटिफाई द व्हाट रोज एंड कॉलम्स निकालना है, पोजीशन निकालना है हमको, राइट, वही सभी है जो मैंने बताया, ठीक है। और उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और एक है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो होपफुली इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर पसंद आया तो ये लाइक कर देना, ठीक है। सो गरीब आदमी हो गया,
ठीक है, एंड होपफुली यू आर डूइंग वेल इन द लॉकडाउन से, बाहर मत जाना, बी सेफ एंड एंजॉय।